Assalamu alaikum and good afternoon and good morning for our European participants. So it's a delight to welcome everyone for this CBEC forum. मगर वो CBEC forum शुरू करने से पहले एक और announcement और event है. So as some of you may already know, CBEC has turned 18 today. Oh, good. So 18 is a screen share. 18 is a big deal for the rest of the world. हमारे यहाँ big deal थी 18 साल पहले जब अदीब साहब ने हमको यहाँ कहा कि शुरू करो और क्या शुरू करो वो उस वक्त हमको नहीं पता था मगर शुरू हो गए थे हम लोग नेक्स्ट टाइम. हाँ so हाँ सर वन छोटा हो गया सर क्या करें. एक्चुअली उस वक्त डॉक्टर आमिर अदीब साहब को भी नहीं पता था कि ये क्या है तो उन्होंने लीप ऑफ फेथ अभी नहीं पता अभी ले जा रहा है शौक चला जा रहा हूँ. तो इस वक्त हमने एक कॉन्सेप्ट पेपर बनाया था बहुत सारी चीजें लिखी थी उसमें कि ये बेशतर चीजें हमने माशाल्लाह करनी जो हम करना चाहते थे. So we've been at it. Some things we are still at. जो चीजें कर ली है वो कर ली है मगर मज़ीद चीजें भी हो रही. इनॉग्रेशन जो डॉक्टर मौजन ने यहाँ उसमें अपना कुछ स्टोर की थी at the inauguration. What she said was this center, the bioethics has been a west to east transfer classic, and this has to stop. So this center was supposed to start an east to west transfer, which has actually happened as far as knowledge is concerned regarding ethics. What she wanted was an organization, a national level organization, a center at CBEC, which would take up research and education, all these activities. What is something that we've been doing all these through these years. Primary goal she had actually pointed out at that time was for CBEC to serve as an academic and intellectual national resource to enhance bioethics education, research and training in Pakistan and the region, and to assist capacity building for future faculty and staff in biomedical ethics. So ये हम समझते हैं कि इस ट्रैक पे इसमें डाला था उसमें हम लोग चल तो रहे हैं 18 साल हो गए. The first 18 years we've been on the same track and have consolidated in these various areas. शुरू हुए थे तो काफी डेसोलेट किस्म की सिचुएशन थी. ये कमरा था जहाँ मुझको बिठा दिया गया. सर ने कहा था कि यहाँ बैठ जाओ. वो एक पेडेस्टल फैन था और ये एक 14.4 kbps का इंटरनेट कनेक्शन था जो भी कभी चलता था. उसमें बिठा दिया गया था. डॉक्टर मौजन वाज इन अमेरिका एट दैट टाइम और अदीब साहब के पास में आया और कहा तुमको जब मैं मिला था बॉस्टन में उस वक्त से तुम यहाँ काम कर रहे हो बस आ जाओ. So I arrived a little bit before Dr. Mozam. She was completing her thesis at that time in the University of UVA and she came a little later. इसलिए डॉक्टर मौजम की क्लॉक जो 18 साल की अगले साल वो मानती ही नहीं कि 18 साल के पहले हमारे हिसाब से हो गए. So this is where we started off from. So this is our first event that we did, Foundations of Moral Thought from Greeks to Contemporary Bioethics. This was a big deal event for us, a huge deal event for the city also. Very much the bioethics cover. We were talking of the evolution of contemporary bioethics as we see it today and tracing its root to Greeks. And it was a highly successful event. And we realized that there's a lot of interest for bioethics education, formal bioethics education in Pakistan. So उसके बाद हम बहुत सारी चीजें करते रहे. Even the पहला साल जिसमें हमारी grand total of faculty was 1.25. Dr. Mozam 1 and 0.25. मैं private practice कहीं और करता. यहाँ मैं थोड़ी सी लेती हूँ. So Dr. Mozam ने सब कुछ करा के और हमारे पास staff भी नहीं था. अब तो माशाल्लाह we have center with a reasonable staff. However, उस वक्त ना faculty थी ना staff था. उस वक्त we did a huge number of things and continue to increase our portfolio within CBEC, within SIUT and outside, within the city, within the country and beyond. So so जो power थी वो वहाँ से आ रही थी एक जगह से. So ये हमारी गली थी जिसके अंदर हमारे students बैठ के अपने इंटरनेट पर काम करते थे. उस ज़माने में वाईफाई का सिलसिला नहीं था शुरू के बाद. And Dr. Mozam and myself taking some sort of a session somewhere. And एमरो के साथ हमारी collaboration थी. Dr. Haitham Al Hayat was the chief of EMRO WHO at that time, visited us. Dr. Abdullah, again an EMRO official, was a very, very strong supporter of
CBEC and SIUT से बहुत काम किया डॉक्टर साहब ने, वो आए थे हमारे पास। ये एक क्लासिक तस्वीर है डॉक्टर मौजम की, ये सीढ़ियां हैं घर की, ये देयर इज नो बैनिस्टर, सो देयर इज अ symbolism right there, और सबको चढ़ा देती है डॉक्टर मौजम उसके ऊपर, और उसमें तस्वीर होती है। ऑल ग्रेजुएटिंग क्लासेस हैव हैड अ पिक्चर, इसमें अदीब साहब भी सामने खड़े हुए हैं, अनवर साहब भी हैं, आर फोटोग्राफ ओवर हियर। सो जो हमारी इंटेक होती है उसके बाद जो बचता है उस क्लास के अंदर वो इस तस्वीर में होता है। तो ये हमारी और कलेक्शन उसकी वो सारी की सारी लगी हुई बहुत सारी। Professor Manzoor Ahmed of Karachi University, philosopher of Karachi University, has been a huge supporter of SIUT and CBEC। उनको जो शुरू किया था तो जो thought process थी वो मंजूर साहब की तरफ से बहुत सारी आई। So here you can see him in a class, पीछे अनवर साहब बैठे हुए हैं and a discussion is taking place with Dr. Mauza। इस तरह के डिस्कशंस हमारे हुआ करते थे, अदीब साहब बैठे हैं, अनवर साहब बैठे हुए हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। रिचर्ड कैश फ्रॉम द हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हैज बीन अ फ्रीक्वेंट constant visitor to SIUT, हमारे CBEC के हर इवेंट में आते हैं वो भी। this was informal discussion with the students going on। So जो ये हमारा स्टूडेंट्स का by the way जीरियाट्रिक एज ग्रुप होता है, तो उसको एंगेज रखने के लिए उसकी गुफ्तगू जरूरी होती है और साथ साथ चाय पिलानी होती है। अगेन मंजूर साहब बैठे हुए हैं एंड डॉक्टर मौजम एंड हर डिसाइपल डॉक्टर जफर नज़ीर द पीडियाट्रिक सर्जन। So we not just remained within Karachi, हमारा presence as a entity internationally has become known। हम लोग WHO collaborating center of bioethics, which is we were the first collaborating center of bioethics in the region for WHO। अब 2 और हो गए, मगर हम लोग फर्स्ट थे और ये झंडा को देख के आए थे अजीज साहब को देने, वो साथ वापस लेके उन्होंने कहा झंडा नहीं छोड़ तस्वीर छोड़। अच्छा, and we have not remained only in Karachi, CBEC has transplant center पे है ना, so we have transplanted ethics in Kenya। So Kenya Medical Research Institute, which is a huge medical research institute over there, they started collaborating with us through a grant from the National Institute of Health USA। In the past 5 years, we have actually developed a certificate course, a diploma course, and a master's course modeled along the lines of Karachi, now working starting in Nairobi। So that's a great accomplishment कि हम लोग सिर्फ हमारा impact जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही रहा है, बाहर भी बहुत significant हुआ। एक point था that we had 1/3 of our class was African, so इस साल से से कम हो जाएगा। And we've also taken we've also taken our faculty, local faculty over there to teach from our faculty is not just Karachi or Pakistan, it is international। So India से हमारे बहुत से लोग आते हैं और मुल्कों से आते हैं। So you can see some of them over there। Now in the newest surroundings, हमारी पहले एक और बिल्डिंग पे थे, हमको एक और बिल्डिंग डॉक्टर रजवी ने कहा कि भाई हम लोग जहाँ स्पेस की जरूरत पड़ी है हमने वहाँ स्पेस। So this was He's probably sorry he said that, huh? Yeah. No, I never said. When I opened my eyes, the things have been occupied. Squatters' rights। But sir, वो कभी-कभार he deliberately looks the other way। जब CBEC का कोई काम होता है डॉक्टर मौजम आते हैं वो कहते हैं पहले कर। यार एक पॉइंट कहता हूँ, ये जो उनका फ्लोर है आपको उसका पूरा, Yes। इसके आगे जो है वो एनक्रोचमेंट देखो कोई The terrace। टेरेस पे हमने ये किया और उस पे भी हमने जब हम उस पे बिल्ड करने की कोशिश की तो फिर उस वक्त हाथ रोक दिया गया कि नहीं बिल्डिंग नीचे चली जाएगी, जो हम उस पे काम भी कर। बट यस वो भी हम लोग so we have had a great Otherwise, it's a good way to get rid of you people. Actually, अच्छा मैं आपसे नहीं पूछा, कहते हम बता दो एक वहाँ जाके खड़े हो जाओ उसके। so this has been a long journey and वो जो पहली मीटिंग थी शुरू जो हुई थी ये this happened in a meeting in a food court in Boston where Adib Saab and Anwar Saab had gone for a conference and Dr. Mauza was in San Francisco with a thesis। उनको बुलाया, मैं वहाँ हार्वर्ड में फेलोशिप कर रहा था, सब मिलके in the food court और वहाँ ये इस आइडिया कंसीव किया गया था। अगेन जैसे सर ने कहा कि करो शुरू करो, so फिर वहाँ से चंद महीने के बाद it actually became a reality and it unfolded gradually। She had to be eloped from there. Quite right। और इसकी वजह ये थी कि जब डॉक्टर मौजम अपनी थीसिस कर रही थी, she was actually doing research based in SIUT when at that point there was no center and as the story goes अदीब साहब ने उस वक्त कहा था कि यहाँ आगे क्यों सेंटर नहीं बनाते डॉक्टर मौजम, व्हाट सेंटर।
उसके बाद वो center actually became a reality because वो डॉक्टर सर जो सोचते बहुत आगे थे हम लोग we find it we have to catch up. So having said all of this, I think एक बहुत important aspect है सर अदीप साहब और डॉक्टर वासम ये इस केक को काटने का तरीका going to be judged with the one who is a team. I can never be a team. And so, तो फिर ये केक आज नहीं कटेगा यहाँ जो लोग बैठे हैं ना ये मैं पता तो कोई काटने वाला नहीं मिलेगा मेरे पास नहीं this is I mean just to add to what so just to add to what Dr. Amir has said, I mean the center is a reality only because of Adeep sir. I mean, इसमें तो कोई there is no two things about it. there are three things. The तीन चीजें कैसे याद आ गई? Not two things, three things. I in my memory, I never wanted all that to come to you, which you have kept. Yes, yes. Yeah, but you see, उसमें आप you allowed me to grab. You want me to celebrate the dissolution of SIUT. देख लें, this is CBEC is another feather in SIUT's cap, which already is full of feathers. ये तो एक और feather है, और क्या? अनवर और सलान, आप लोग सब लोग देख लें, नहीं है तो रख लें. Okay. Actually, what you see today and what has happened in SIUT and from CBEC, actually CBEC in itself is something which is a great source of encouragement, inspiration to all of us. And I think we are proud of CBEC. We are proud of the people who are running it, especially for Muslim. And got somebody who will she look to her son and it appears that that is Amir. and then सर ये तो क्या बात की आपने सर इसमें तो सर ये क्या बात की movement किया he appears. She was done there. इसको सर आपको ये You have to. both of you have नहीं डॉक्टर मौसम ये मैंने बहुत सोचा है ये हाँ आप दोनों सर ये अदीप साहब का बनता हाँ है. सर आपका भी डॉक्टर मौसम आपके साथ बनता है हाँ ये Because both surgeons just okay. All right. Great. Yeah. Wonderful. Okay. So यहाँ actually पैसे इसके फरहद देंगे याद रखना. हाँ वो दे दिए वैसे वो पेटी कैश जो है वो आपने जो दिया था उसमें दे दिए. Not to worry about it. Anyway. So now turn to the Yeah. Okay. Please. Yeah. Can you? Yeah. Okay, thank you so much for being here, for being patient and joining us here in this forum. We welcome you to CBEC, to the CBEC forum. You've already heard about the inception of the center. CBEC forums are bi-monthly events that we hold, and my name is Waleha. I work at the center, and I've been associated with the center for the past 7 years. We're really happy to have Saba and Tooba over here with us. Saba is joining us online from Netherlands, and we're really pleased to have Tooba here in physically. Yeah. Okay. So the topic of the CBEC forum is Once Upon a Time in Pakistan, Poetry, Politics, and People of the 70s. And using the lens of a very mysterious murder, mysterious death of Mustafa Zaidi, we will be exploring what was happening back in the 1970s. And just a very brief introduction to our two speakers. Saba, who's online with us. Saba is a freelance journalist, author, and researcher, and she writes about culture, urban life, food, and religion. She's the author
of a book, and she's worked a lot within the area of journalism and writing about various topics. Tooba Masood Khan is a multimedia journalist and reporter, and she's a graduate of SOAS University of London. And right now they both are working together on a series of podcasts, which is known as Notes on a Scandal, which is where we actually got the idea of this forum. And these two women were very happy to oblige and come over here. The session will be moderated by Fareed bin Masood, who is also a faculty at a center. So over to Fareed. Thank you, Sonia. So I'll just share my screen and today's program is based on a podcast by these two journalists, and that podcast is Notes on a Scandal. And on her request, Tooba Masood has brought a promo of season 2 of the podcast. I'll briefly play this promo and then continue with the introduction. Sorry. Okay. So इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, हमें साउंड नहीं मिल रहा। और इस शेर से आप पहचान गए होंगे शायर को, मुस्तफ़ा ज़ैदी। सो मुस्तफ़ा ज़ैदी बहुत मशहूर पाकिस्तान के शायर रहे हैं और कई मशहूर अशार इनके मीडिया पे भी लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत से सियासत में भी पढ़े जाते हैं। आजकल पिछले कुछ अरसे से एक और शेर उनका बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद Mustafa Zaidi. Mustafa Zaidi was born in 1929, 10th October, और एक्चुअली 2 दिन बाद उनकी बर्थडे भी है, तो एक तरह से हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके 2 दिन बाद उनकी बरसी भी है। तो 1970 में mysteriously was found dead with the love of his life, we wish Shahnaz Gul, which they will be talking about. So Mustafa Zaidi was a bureaucrat. He passed the civil service exam and he remained deputy commissioner of different cities in Pakistan. And at the end, he was the director of local governments, basic democracies. Okay, so just before 1 year before his death, he was removed from his service by General Yahya Khan, which was a series of people were expelled from bureaucratic services. So his life turned, and his wife, who was a German woman, Vera Zaidi, she went to Germany with her sons, 2 children, and he was left here. And just after 1 year, he was found dead. So in their podcast, they have discussed not just the mysterious case of this death of Mustafa Zaidi, they have also discussed the Pakistan of that time, the influential people of that time, how the culture of the night culture of Karachi was at that time, how the capitalists, the journalists were doing their work, how the legal system was working in Pakistan. So many aspects of the 70s in Pakistan, they have discussed in the podcast. So we'll start from a very basic question. Why podcast? So Saba, should I take it or do you want to take this? No, I think you should. Okay. So I listen to a lot of podcasts. I listen to a lot of true crime and general news and everything. So in 2019, when we started researching on this, I was like, Saba, we have to do a podcast. But we were then more interested in finding something in print. हमने इस वक्त तक किताब का कुछ सोचा नहीं था. हमने सोचा था कि हम कहीं article या कुछ ऐसा देख लेंगे.
मगर वो टाइम गुजरता गया, हमारा आर्टिकल वैसे ही पढ़ता रहा, लेकिन हम लोगों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली, इतनी चीजें मिली कि we were like we have to tell this story somehow. And that's when we decided in December last year that we have to do a podcast. And that's when we started. Like, I think it was the first week of December when we started recording, and we had no idea how to do it. We literally learned as we went along, and it's been going on since, and now we're on our second season. And it's been quite exciting. Like, it's a good learning experience, the feedback we've gotten and everything. And I also do like this medium of sharing stories more than I like it for print now. Great. And actually, podcast has becoming the fastest growing medium among this generation. And interestingly, people of the older age cannot understand how this generation can listen to hours and hours of audio. I feel like there are a lot of people. I feel like with this podcast, at least, I feel like it's age is not a issue. Like, there's so many people I know who are much older who don't understand how technology works, but they still, they're interested in it. So they'll find someone who will download it for them, or they'll ask. And the best thing about this is that you can hear it anywhere. So you can hear it on Spotify, you can hear it on Google Podcast, Apple Podcast. Like, जहाँ में भी आपको कहीं भी ऑडियो मिलेगा, आप इसको सुन सकते हैं. तो like, मुझे उसका रिस्पॉन्स बड़ा मजे का लगता है कि वो हर एक को इतना एक्सेसिबल है. सही. So as you have mentioned के बड़ी उम्र के लोग भी आपकी इस पॉडकास्ट की तरफ अट्रैक्टेड हैं. So I'll ask Dr. Tariq to recite a poem from his collection of Mustafa Zaidi's poem. Tariq is a physician in civil hospital and a अदब का एक गहरी निगाह रखते हैं. ये बहुत ज्यादा हो गई. बहरहाल आपने दोस्तों ने का कदा कर दिया, बहुत शुक्रिया. मैं पहले माजरत चाह लूं अगर मुझसे तलफ़्फ़ुज़ की कोई भी गलती हो जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा ज़ैदी का कलाम पढ़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मकाम है, और इतने सारे लोगों के सामने. और गाजी साहब बैठे हुए हैं, तो सर आपसे खास तौर पे अगर मुझसे कोई गलती तलफ़्फ़ुज़ की हो जाए तो मैं माज़रत चाहूँगा. मुस्तफ़ा ज़ैदी ने एक नज़्म लिखी थी. वो नज़्म ग़ालिबन शहनाज लाला रुख की जो उनकी जमानत थी उसमें उसने बहुत अहम रोल अदा किया था. लेकिन वो बाद में, उससे पहले ये नज़्म जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये उन्होंने खुद इसको उन्वान दिया था शहनाज लाला रुख के नाम. शहनाज गुल हो या शहनाज लाला रुख हो या शहनाज सलीम या सलमान गालिब सलीम, मैं उन्हें शहनाज लाला रुख ही कहूंगा. जो भी था चाक गिरेबां का तमाशा ही था. जो भी था चाक गिरेबां का तमाशा ही था. तू ना होती तो ये तदबीरे रफू करता कौन. एक ही सागरे जहरा बहुत काफी था. दूसरी बार तमन्नाए सुबू करता कौन. तेरे चेहरे पर जो तकदीस न होती ऐसी, दिल के मवाज समंदर में वुजू करता कौन. तूने अंदेशाए फरदा को समझने पर भी मेरे इमरोज को हर फिक्र से बाला रखा. ले चली थी मुझे जर्रों की तरह बादे समूम. तूने
हीरों की तरह मुझको संभाला रखा। उस पर ममनू थी बूंद की फयाजी भी, तूने जिस होंठ पे कौसर का प्याला रखा। अपनी पलकों में छुपाया मुझे तूने उस वक्त जब सरेरा हर एक फर्द मेरा कातिल था। तूने आकर मुझे जुर्रत की इकाई बख्शी। ये शेर मैं चाहूंगा कि आप गौर से सुने। तूने आकर मुझे जुर्रत की इकाई बख्शी, मुझ में एक शख्स बहादुर था और एक बुज़दिल था। कोई वाकिफ ही नहीं है कि रजस के हंगाम, कोई वाकिफ ही नहीं है कि रजस के हंगाम, मेरे लहजे में तेरा गर्म लहू शामिल था। रंग में सादा मिजाजी का भरम तुझसे है, संग में ज़हमते तख्लीके सनम तुझसे है। तुझसे है यूं जो फरामा है वफा की दौलत, ये जो अंदेशा है जहां इतना है कम तुझसे है। मैं अलग होके लिखूं तेरी कहानी कैसे, मेरा फन मेरा सुखन मेरा कलम तुझसे है। मेरा फन मेरा सुखन मेरा कलम तुझसे है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका, बहुत अच्छी आपने नज़म। अच्छा, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा और अगला सवाल भी बहुत बेसिक है। ये टॉपिक क्यों? ये टॉपिक क्यों, सबा आप बताना चाहेंगी? हम दोनों की एक्चुअली अलग अलग कहानी है। व्हाई सबा, why don't you go ahead first? जी, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड डॉक्टर अदीब, इट्स एन ऑनर कि आप शामिल हैं। तो You'd have to Sorry, say it again, Saba, we couldn't hear you. you have to speak again, please. Sorry. Sorry. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for being here, especially Dr. Adeeb. It's an honor to have you sitting here with us. And Dr. Tariq, thank you so much. बहुत ज़बरदस्त आपकी recitation थी. So the topic, to be quite honest, मुझे भी बहुत लोगों की तरह बहुत देर बाद पता चला about this case. एक दिन अचानक, sort of not अचानक, दफ्तर में I was quite bored and मैं कोई पुराने हमारे यहाँ ऑनलाइन आर्काइव्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी अखबारों के। तो मैं एक अमेरिकी आर्काइव्स ही देख रही थी और उसमें मैं 1970 में पाकिस्तान में क्या हो रहा था उस टाइम की खबरें देख रही थी। तो उसमें एक अखबार में एक स्टोरी थी मुस्तफ़ा ज़ैदी के बारे में, एंड वो एसोसिएटेड प्रेस वायर सर्विस की स्टोरी थी कि इस मर्डर ने पूरे पाकिस्तान को जो है वो गिरफ्त में लिया हुआ है, एंड एवरीवन इज ऑब्सेस्ड विद द स्टोरी। एंड उसमें बेसिक सॉर्ट ऑफ स्टोरी का रन डाउन था कि इस तरह से एक शायर और ब्यूरोक्रेट थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, और द वुमन हु वाज इन्वॉल्व्ड एंड पुलिस वाज फाइलिंग चार्जेस एंड इन्वेस्टिगेटिंग। एंड मैंने कभी इस कहानी के बारे में सुना नहीं था, एंड कभी सॉर्ट ऑफ जिक्र भी नहीं आया था। एंड उस वक्त हमारे कॉलीग होते थे, मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में काम करती थी, हसनात साहब, एंड वो काफ़ी सीनियर थे। तो आई आस्क्ड हिम एंड उन्होंने कहा कि नहीं, शनाज तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत खातून को मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, उनको काफ़ी कुछ मालूम था इस केस के बारे में। सो फ्रॉम सिंस देन इट वाज इन माय हेड, बट आप अखबार में अगर काम करते हैं तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आपके पास कभी टाइम हो कि आप 600 लफ्ज़ से ज़्यादा लिख सकें या सोच सकें किसी चीज़ के बारे में। और उस वक्त तो ख़ास तौर पर बहुत constant ही एक पेस थी स्टोरीज की। So it was in my head for a long time, and कई साल बाद अचानक से Tooba and I we met for something else completely, and मैं किसी और पुरानी स्टोरी पे काम कर रही थी, and Tooba said, अगर किसी पुरानी स्टोरी पे कभी काम करना हो, I'm really interested in the case of Mustafa Zaidi, and I said, so am I. And हालांकि Tooba and I had worked together, but we had never collaborated as such on something like this. And कोई इस वक्त as such, जैसे Tooba ने कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं था, and we also had very limited understanding of the case. हमारे सहनों में एक बहुत ही straightforward से narrative था कि वो एक ब्यूरोक्रेट थे और suspicious circumstances में मुर्दा पाए गए, जो उस वक्त का common
at least whatever we had read, was very much, of course, it was murder. And it seemed quite straightforward, which after 3 years, I realized is absolutely not. तो ये तो story थी कि हम कैसे इस topic पे पहुंचे. Tooba की story of how she got to it is a bit different. But I think more than anything else, इस कहानी की इतनी relevance है हमारी आज की understanding में of Pakistan and how it developed in terms of as a turning point of everything changing in Pakistan at this time. And ये तो just in general एक ज़रूरत है पुरानी stories को पढ़ने की. You know, there is so much of our history जो documented नहीं है या जो available नहीं है. You can't just Google dawn 1970 and find the newspaper. आपको किसी पुरानी library में किसी librarian से मिलते तरले करने पड़ते हैं कि वो आपको कोई पुराना अखबार दिखाते हैं, पहली बात तो. So just the lack of knowledge is terrible, and it's not presented in a way in which it is accessible or readable, right? And obviously generational link hum lose karte ja rahe hain as an older generation passes of people who know these stories and can repeat them to us. To ek ye bahut important cheez hai. And in every way, this topic represents so much of what we need to understand about how Pakistan developed in terms of its politics and media and culture. Hum khawateen ko kis tarah represent karte hain, legal system mein, what happens when a high profile murder case is tried. And so it connects, I think, for us, a lot of threads about how Pakistan is today. At least मुझे तो I think contemporary Pakistan की बहुत अच्छी understanding है जो शायद मुझे कुछ साल पहले समझ नहीं आती थी. of किस तरह से चीज़ें develop हुई, लोगों का perception कैसे change हुआ society के बारे में, high society के बारे में, bureaucrats के बारे में, bureaucracy खुद कैसे change हुई. So yeah, I mean, there's everything kind of in this one story and in this particular topic. ठीक, तो हम उन सारी चीज़ों पर भी आएंगे जो आपने मेंशन किया, सारा पॉलिटिक्स, कल्चर वगैरह. सो Tooba, do you have a very different kind of a story? I actually do have a different story. Okay. So मैं जो है ना, एज अ जर्नलिस्ट, मेरी जो वो काम को मैं करती हूँ ना, वो मैं रैबिट होल्स में चली जाती हूँ. तो मुझे किसी ने, मेरे वालिद का 2015 में इंतकाल हुआ था, तो किसी ने कहा कि उनको मुस्तफा जैदी की शायरी बहुत अच्छी लगती थी. So I was like, okay, then I started googling him, then I found this case, then I was like, what? और फिर मैंने, ऑब्वियसली मैं डॉन में काम करती थी, पूरी लाइब्रेरी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं रोज जाके जो है अखबार निकालती थी और मैं उसमें हेडलाइंस पढ़ती थी. I'm like, ये चीजें चली कैसे गई अंदर. उसकी जो कवरेज थी, it was very different from how anything is covered today. The language, the kind of obsessive way people were, Shanaz and Mustafa's, like literally everything about their lives is like, you know, in public scrutiny now. So उससे मुझे बहुत fascination हुई. फिर जब सबा मुझे लाइब्रेरी में मिली, तो it just, I think it was meant to be, it had to happen. तो उसके बाद से भी you just got obsessed with it. हमने archives देखी, हम लोग पता नहीं कहाँ गए चीजें निकालने के लिए, कहाँ हमने लोग ढूंढे. So it's been a really fascinating journey for both of us. Very interesting. So मैं चाहूँगा एक चीज़ आप लोग देखें. बहुत सारे लोग जिनको शायरी से शगफ है वो तो मुस्तफ़ा ज़ैदी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायरी से शगफ नहीं रखते लेकिन कभी उन्होंने टीवी देखा है. सो मैं चाहूँगा सालिहा एक वीडियो प्ले करें. मैंने 4 छोटी वीडियोस को कंपाइलेशन किया है और उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं पॉपुलर मीडिया के अंदर, वो मुस्तफ़ा ज़ैदी की शायरी है. So
Thank you. Sorry, I think some of the participants were not able to hear what was being played on the screen, but those in this room have possibly. So sorry, कुछ एक मसला है साउंड का, वो हम देख लेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा ज़ैदी बहुत मशहूर शायर, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और जैसा कि हमने इस प्रोग्राम से पहले जब इनसे डिस्कस कर रहे थे तूबा और सबा से, उन्होंने भी बताया कि ब्यूरोक्रेट्स जो आजकल यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके अंदर भी बहुत एक फैसिनेटिंग फिगर के तौर पर उनको देखा जाता है। हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने को देखा इसके अंदर, और सिर्फ स्कैंडल को नहीं देखा, सोसाइटी को देखा, तो सबसे पहले कराची से शुरू करते हैं। आपको उस जमाने की चीजें पढ़ के, देख के, अखबारों को देख के, लोगों से बातें करके कैसा लगा उस जमाने का कराची और आज का जमाने का? मुझे तो यकीन नहीं आया था। क्यों, क्या डिफरेंस? It was very different from what I had thought that Karachi would be like. तो I'm 33 years old. तो मैंने जो कराची देखा है दैट्स वेरी डिफरेंट। मैंने कोई नाइट लाइफ सीन नहीं देखा है यहाँ पे, कोई पार्टीज का ऐसा नहीं सुना, मगर हम लोगों ने जो इंटरव्यूज में लोगों से बात की और जिस किस्म की उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई कि मेट्रोपोल पे क्या होता था, रेस्टोरेंट्स कहाँ पे होते थे, हमने जो अखबारों में देखा, हमने स्टार में जो फोटोज और ये सब देखा था, इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. It's like the Karachi now is mere shadow of what it was then. Just the roads, how people used to walk around, even the kind of fashion that they had was completely different. And I wish like I was there in the 70s. And Saba, do you think there was any difference in the politics of Karachi, the activism, the movements, all these things? Of course. I think one thing that's interesting is that there was a lot more, there was a lot more cross sections of society. So for example, if you were studying whatever, engineering, you still had some kind of connection to poetry because आपके college में शायद जो है वो आते थे कोई शायर इसी तरह के किसी फोरम पे, या जो है वो आपका एक दोस्त था जिसको शायरी का शौक था तो वो आपको मुशायरे पे ले जाता था, या आपके जो वालिदैन थे उनका ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक था और शायद वो मुस्तफा ज़ैदी के दोस्त थे. So there were a lot of ways in which society was still segregated according to class and income and many other things, but there were more opportunities, I think, for people to be in the same space. Even जो उस वक्त के बिल्कुल जो आप कह सकते हैं 1% elite जो थे या जो 21 families थी, उनमें से भी कई families का शायरी में interest था. You know, या for example, just because they were influential, वो उनका bureaucracy में they had some connection, तो जाहिर सी बातें जानते थे कि वहाँ पे you know कुछ शायर भी हैं. That I think is very different now. अब जो है वो बहुत हम एक for many reasons बहुत silos में रहते हैं. And obviously the politics was changing very dramatically in 1970. जब ये सारे वाक़यात मुस्तफ़ा ज़ैदी की death के हो रहे हैं या उससे एक साल पहले से basically जब उनको प्रेसिडेंट अयूब की regime में जब उनको बरतरफ किया जाता है, we're preparing for the biggest kind of democratic experiment in Pakistan in 1970. बिल्कुल elections सर पे खड़े हैं. You know, Zulfikar Ali Bhutto has really kind of captivated the country by storm. अगर आप उस time के conservative newspapers या जो जमात इस्लामी के जो हामी newspapers को देखें तो you know they're very much trying to kind of create some kind of relevance for themselves and to oppose what is the clear populist rise of Bhutto. And that all of that is changing very dramatically in Pakistan. You know, criticism bhi hai of the, and we're coming off also again a decade of people you know really being angry at the fact that power is centered in the hands of the very rich. So obviously political activity bahut zyada hai, young people are interested in politics. Agar aap us zamane ke akhbar dekhein jo election ki coverage hai, the lines of people you see voting, you know, and कितनी excitement है लोगों के अंदर, या कितनी excitement से press उसको cover कर रहा है कि पहली दफा जो है कोई खातून वोट करने जा रही हैं, या you know people lifting up like
old people like by their hands to be able to take them to a polling center. Like इस तरह की coverage मैंने शायद जिंदगी में नहीं देखी अपनी, because उस तरह उस level की excitement और उस level की I guess politicization was very, very new. Obviously उसके कुछ ही दिनों बाद it all goes south, but politics उस जमाने में, at least from what I can tell, is really kind of changing and developing. तो बहुत कुछ नया हो रहा है और बदल रहा है लोगों के लिए उस जमाने में. Thank you, Saba. Also, I'd just like to add something. Sorry, I'm cutting you off, but even in the election coverage, it was really fascinating how Shahnaz became a part of that. So, like, एक तरफ आपको election की चीजें नजर आ रही थी, दूसरी तरफ शहनाज की photo छपी हुई होती थी. It was quite fascinating, like how both these things were going together. सही. सबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अपने जवाब देते हुए कही कि बहुत सारे इस तरह के लोग होते थे कि वो ब्यूरोक्रेट हैं और शायर हैं, और बहुत सारे दीगर प्रोफेशंस में लोग हैं और शायर हैं. हमें इस तरह आज बहुत कम नज़र आता है. तो इसी की उससे मैं देखूंगा. मतलब ये भी था कि शायर नहीं है तो कम से कम शायरी में बहुत ज़्यादा शगफ रखते हैं. अब इस तरह से होता जा रहा है कि जो लोग लिटरेचर से ही रिलेटेड हैं वही शायरी में हैं, या जो शायर हैं तो वो सिर्फ शायर हैं. ये ट्रेंड हमें कम नज़र आता है. डॉक्टर रुबीना से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलेक्शन में से कुछ हमें पढ़ के सुनाएं. उनकी वो मुस्तफ़ा ज़ैदी की कुल्लियात भी लेकर आई हुई हैं और उसमें बहुत सारी मार्किंग्स लगा के लें. डॉक्टर रुबीना इज जो कि हमारी ऑनलाइन ऑडियंस को शायद कुछ को ना पता हो, हमारी SIUT की नेफ्रोलॉजिस्ट है और इन हाउस उर्दू दान भी. बहुत बहुत शुक्रिया. ये जितने निशान लगे हुए ये सब नहीं पढ़ना मुझे. जी, जो आपको सबसे अच्छा लगता है. दो बहुत मुख्तसर सी मैंने नज़में सेलेक्ट की हैं और ये मैं इनका चाहूंगी कि मैं पढूं इनको. गाजी साहब से इजाजत ले लूं. सर, एक नज़्म है जो खुद इन्होंने लिखा है कि रूडी की नज़्म इन टाइम्स ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ नेशंस, उससे मुतासिर होकर उन्होंने लिखी. और गांव के बैकग्राउंड में उन्होंने बताया. और नज़्म का उन्वान है परछाइयाँ, शेडोज. परछाइयाँ. अब से पहले भी ये तुलसी का जरा सा पौधा इसी मंदिर के कलेजे से लगा बैठा था. अब से पहले भी ये बरगद का पुर असरार दरख्त गांव वालों के अकायद को बहुत प्यारा था. अब भी चौपाल के जीने का पता देते हैं बैलगाड़ी के चटकते हुए पहियों की रगें. न कोई वक्त की किल्लत, न गुरेजा लम्हे, वही गो धूल, वही हम, वही कच्ची सड़कें. हस्बे मामूल खतरनाक भेड़ों के छत्ते बेखतर ताकों को आबाद किए बैठे हैं. हस्बे मामूल बड़े कुनबों के 2-4 बुजुर्ग एक लाचार से हुक्के को लिए बैठे हैं. नीम के पेड़ हैं टूटी हुई कब्रों के करीब, एक तारीख है उजड़ी हुई मेहराबों में. ढेर के ढेर हैं गदराई हुई जामन के, और आम की टोकरियां बहती हैं तालाबों में. उसी लू धूप, उसी सख्त उमस के बावस अब भी मंगल को यहाँ पेट लगा करता है. पेट कहते हैं गांव का बाजार. अब भी मंगल को यहाँ पेट लगा करता है. सैकड़ों बार सुनाए हुए एक किस्से को अब भी एक शख्स बदस्तूर कहा करता है, और उस शख्स की आंखों में बदस्तूर अभी वही बेजार सी अंधी सी चमक बाकी है. उसकी दाढ़ी पे ढलक जाते हैं अब तक आंसू, उसके चेहरे पे वही गम की कसक बाकी है. ऐसा लगता है कि दुनिया के उफक ज़ारों पर आज तक जंग के बादल कभी मंडलाए नहीं. ऐसा लगता है कि शहरों से कभी डॉन जुआन इन उलझती हुई राहों की तरफ आए नहीं. जाने कब तक रहे ये दोसी बेदाग फजा, जाने किस वक्त ये ख्वाबों की इमारत ढह जाए, और तुलसी का ये मगरूर जरा सा पौधा तेज किरणों की तमाज़त से सुलग कर रह जाए. बहुत खूब, बहुत शुक्रिया. अगर आपकी इजाजत हो तो एक और सुना दूं. जी. ये एक नज्म है जिसका उन्वान है कोहे निदा. कोहे निदा दरअसल एक दास्तानवी पहाड़ है जो मीर अमन देलवी की बागो बहार क़स्सा 4 दरवेश में भी जिसका जिक्र है. ये पहाड़ है जो कि जिससे आवाज आती है या आखी, और जिसके कान में आवाज आती है वो
उस पहाड़ की तरफ चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। तो इस नज्म का उन्वान है कोहे निदा। अय्युहन नास, चलो कोहे निदा की जानिब, कब तक आशिफ्ता सरी होगी नए नामों से, थक चुके होगे खराबात के हंगामों से। हर तरफ एक ही अंदाज से दिन ढलते हैं, लोग हर शहर में साये की तरह चलते हैं, अजनबी खौफ को सीनों में छुपाए हुए लोग, अपने आसेब के ताबूत उठाए हुए लोग, जात के कर्ब में बाजार की रुसवाई में, तुम भी शामिल हो इस अम्बोह की तन्हाई में, तुम भी एक बादिया पैमा हो खला की जानिब। खुद ही सोचो कि हर एक दर से मिला क्या आखिर, कार आमद हुई फरियाद के नाकाम हुई, अपनी गलियों में से किस किस ने सताया तुमको, दश्ते गुर्बत में कहाँ सुबह कहाँ शाम हुई, किसने सोए हुए असबाब फुगन को छेड़ा, किसने दुखते हुए तारे रगे जांग को छेड़ा, किसने समझाई तुम्हें इशरत गम की बातें, कौन लाया तुम्हें अंदूहे वफा की जानिब। अब किधर जाओगे, क्या अपना वतन क्या परदेस, हर तरफ एक सी समतों का निशान मिलता है, अपनी आवाज बिखर जाती है आवाजों में, अपना पिंदार मलूलो नगरा मिलता है, फूंक कर खुद को नजर आती है एहसास की राख, वक्त की आंच पे लम्हों का धुआं मिलता है, रास्ते खोए चले जाते हैं सन्नाटों में, मशअले खुद ब खुद आते हैं हवा की जानिब। कब तक अफसानों अफसों की हशीशी रातें, तलबे जिन्स तलाशे शबे इम्कान कब तक, जहन को कैसे संभालेगी बदन की दीवार, दर्द का बोझ उठाएगा शबिस्तान कब तक, देर से नींद को तरसी हुई आंखों के लिए, ख्वाब आवर नशे आरज़ो मिशगां कब तक, कितने दिन और पुकारेगी तुम्हें जिस्म की प्यास, नगमो गमजो अंदाजो अदा की जानिब। रात भर जागते रहते हैं दुकानों के चिराग, दिल वो सुनसान जजीरा के बुझा रहता है, लेकिन इस बंद जजीरे के हर एक गोशे में जात का बाबे तिलस्मात खुला रहता है, अपनी ही जात में पस्ती के खंडर मिलते हैं, अपनी ही जात में एक कोहे निदा रहता है, सिर्फ इसको के दामन में मयस्सर है निजात, आदमी वरना अनासिर में घिरा रहता है, और फिर इनसे भी घबरा के उठाता है नजर अपने मजहब की तरफ, अपने खुदा की जानिब। अय्युहन नास, चलो कोहे निदा की जानिब। चलो कोहे निदा की जानिब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुबीना। अभी थोड़ा सा आपने जिक्र किया उस वक्त की पॉलिटिसाइजेशन का, सबा आपने भी बताया थोड़ा सा। मैं ये चाहूँगा कि एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के अंदर आपने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कुछ चीज़ें शेयर की हुई हैं जो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत जल्दी से उसका एक रिव्यू हो जाए इस पूरे केस का, और आप उस डॉक्यूमेंट्स को भी देख लें ताकि इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो फिर आपको वाकया और उस पर जो डिस्कशन होगी वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। आप जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो इनको मर्डर मिस्ट्री 70 लिख के उस पर फॉलो कर सकते हैं। ये वो अखबार का टुकड़ा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि 303 लोग, उन लोगों में मुस्तफ़ा ज़ैदी शामिल थे जिनको ब्यूरोक्रेटिक सर्विस से निकाला गया। नहीं, मैं बस तेज़ी से वाकया बता रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ। ये खबर चली शुरू में कि उन्होंने खुदकुशी की है। ये मुस्तफ़ा ज़ैदी की अयूब खान के साथ एक तस्वीर है, ये इनकी एक नज़म छपी थी। ये हैं शहनाज गुल, उनके साथ मुस्तफ़ा ज़ैदी की एक तस्वीर। ये मुस्तफ़ा ज़ैदी की डेड बॉडी को लेकर आ रहे हैं उस घर से जहाँ पर उनका इंतकाल हुआ, जहाँ उनकी लाश पड़ी हुई मिली, और उसके साथ ही शहनाज गुल अनकॉन्शियस कंडीशन में नज़र आई, उनको भी लेकर आए और हॉस्पिटल में। ये इन्होंने कुछ अखबार के टुकड़े शामिल किए हैं जिससे पता चलता है उस वक्त के पाकिस्तान के बारे में कुछ,
और ये एक लेफ्टिस्ट अखबार था जिसने उस वक्त के एलीट कल्चर के खिलाफ, और मुस्तफ़ा ज़ैदी भी लिखा करते थे उस वक्त के एलीट कल्चर के खिलाफ, और इसमें उनकी नज़में भी छपा करती थी। तो कुछ, और फिर ये शहनाज अपने हस्बैंड के साथ उस केस की फॉलोइंग में उनको बार बार पेशियाँ देनी पड़ती थी, और लोग जो है वो उनको देखने के लिए, एक नज़र देखने के लिए चौक दर चौक। और ये कुछ और तस्वीरें जो मेन पेज पे अखबारों के इनकी छपा करती थी शहनाज गुल की। केस के अंदर जो अभी इनका लेटेस्ट एपिसोड आया उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि एक्सह्यूमेशन हुई थी मुस्तफ़ा ज़ैदी की 2 महीने बाद, 2 महीने बाद ना, नहीं, ये कुछ 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद। सो उसके मनाजिर हैं जहाँ पर उनकी अहलिया और उनके भाई बैठे हुए हैं। ये उनकी कब्र के गिर्द कुछ पुलिस वाले खड़े हुए जिन्होंने पहरा दिया था एक्सह्यूमेशन से पहले। ये डाउ मेडिकल कॉलेज की तालिबात जो उस डेड बॉडी को देखने के लिए बाहर आई हुई हैं। ये कुछ और तस्वीरें शहनाज गुल की। सो ये एक केस है जिसके अंदर पहले ये कहा गया कि शायद खुदकुशी की है, फिर कहा गया कि नहीं मर्डर हुआ है उनका, और काफ़ी तहकीकात चलती रही का, और अखबारों में और लोगों के दरमियान भी बहुत एक सनसनी फैली हुई। और फिर जब कोर्ट की पेशियां हो रही हैं और पुलिस लेके जा रही है तो लोग जमा हो रहे हैं देखने के लिए कि क्या मचा हुआ है, और लोग उसके ऊपर जो है तरह तरह के तबसरे लिख रहे हैं। हर सोसाइटी के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिस्ट उसका एक अलग तरीके से तज्जिया कर रहे हैं, और बाकी लोग अलग तरीके से। आपको क्या लगता है कि जो एलीट कल्चर कराची में था और उसके खिलाफ मुस्तफ़ा ज़ैदी भी लिखते थे, और बाकी अखबारों में भी जब इस केस की फॉलोइंग हुई, तो इस केस के ऊपर जो रिएक्शन आया, क्या वो रिएक्शन अगेंस्ट द एलीट्स के तौर पे आया या उससे उसका कोई ताल्लुक था या नहीं? I don't think it was a reaction against the elites. I just think that जो कवरेज थी उसमें लोगों एलीट एग्जिस्ट करते थे और लोगों को पता नहीं था कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। इस केस से क्या हुआ कि आपको एक छोटी सी विंडो मिल गई कि आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। बट इंटरेस्टिंगली जो हमने देखा कि उस सोसाइटी, उस लेयर में भी जो एलीट की बहुत सारी लेयर्स आती हैं, ठीक है। जैसे हमें इनिशियली लगा था कि शहनाज हाई सोसाइटी की है। शहनाज एक्चुअली वाज़न्ट हाई सोसाइटी, शी वाज इन पेरिफेरी, एंड मुस्तफा ज़ैदी वाज आल्सो अगेन नॉट हाई सोसाइटी। ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, ही वाज अ सिविल सर्वेंट एंड एवरीथिंग, बट उनका वो जैसे जतोईज भुट्टोज उसके लेवल पे बिल्कुल भी नहीं थे ये लोग। And I think that is what was interesting, and like a lot of people we spoke to, you know, I thought it was very interesting because सबा में इस केस में इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि हमें बहुत परेशानी होती थी जब लोग कहते थे व्हाट मुस्तफा कौन है या शहनाज कौन है। हमने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया who knew शहनाज and they had no idea that she was having you know, she had a relationship with Mustafa, and I think that to me was very shocking, but I think it shows कि elite में और common man में difference क्या आता था। और जिस तरह की कवरेज हुई थी, अगर आप डॉन में देखें वो बहुत अलग थी, स्टार की बहुत सेंसेशनल थी, जंग was worse, but I think मशरिक was the worst। सबा I think जंग was more shocking क्योंकि लोग expect नहीं करते थे जंग से ये। और आई थिंक उसके अंदर एक और जो चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी इज द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट दे यूज्ड उसके अंदर। जैसे अब आई डोंट थिंक लाइक अब तो ऐसा कोई पैरामोर यूज नहीं करता, मगर उस जमाने में लाइक यू नो दे हैड स्टफ लाइक सेक्स ऑब्जेक्ट्स, दे हैड लव सेशंस, दे हैड वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस अबाउट थिंग्स, एंड आई थिंक उससे भी ये था कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट हुआ, दे वर लाइक यू नो व्हाट आर दीस पीपल डूइंग। वो एकदम से वो जो मोरालिटी थी वो उस सोसाइटी की जाग गई थी कि हो क्या रहा है आखिर, because obviously किसी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, but and obviously like you know everyone likes to gossip, so सही। it तो just became fodder। पिछले कुछ एपिसोड से, सॉरी सबा जी आप कुछ कह रहे हैं? जैसे तुबा कह रही है, आई थिंक लोगों के जो वर्स्ट फियर्स थे ना वो भी बहुत एक तरह से कंफर्म हो गए थे, नॉट जस्ट अबाउट रिच पीपल बट आल्सो अबाउट द ब्यूरोक्रेसी। सो फॉर एग्जांपल कि अच्छा ये अगर सिविल सर्विस ऑफिसर है और यू नो एक सर्टेन पोस्ट पे है तो ये तो करते ही होंगे, मतलब कि यू नो खवातीन तो इर्द गिर्द घूमती होंगी या ये खवातीन के इर्द गिर्द घूमते ही होंगे। सो इट वाजंट के जो आजकल की शायद सोसाइटी में डिफरेंस है कि it wasn't a surprise that somebody is having an affair, even somebody married. The surprise was that they got found out. It became public. She was found there. And that, I think, in itself was like the big shock. It's not so much that somebody was having an affair. Ye bahut ek common cheez thi. Shora ke affairs the, bureaucrats ke affairs the, rich people were having affairs. Even middle class women maybe were having affairs. The point was that they got found out. And that in itself was too shocking. It became public.
Also, इससे पहले जो सबसे बड़ा society scandal था, it was I think the first divorce that had happened, which was publicized, like it was covered in the newspaper, and then obviously Noor Jahan's own married life and her several divorces and stuff. उसके ऊपर भी बहुत coverage गई थी, तो लोगों का interest, appetite जो थी basically इस चीज के लिए बढ़ गई थी. They wanted to know more. They wanted to get into what was going on. सही, नूर जहाँ का आपने तस्करा किया, उसी से रिलेटेड एक और सवाल भी है। मतलब आपने जिक्र किया और उस के अंदर आपने न्यूज़पेपर कटिंग भी शेयर की अपने पेज पे नूर जहाँ के बारे में। तो जिस तरह से इन लोगों को यूज़ किया जा रहा था पॉलिटिकल गेन्स के लिए, नूर जहाँ को यूज़ किया मेरे ख्याल में भुट्टो ने अगेंस्ट याया खान, और इसी तरह इस वाक़े को भी अगेंस्ट याया खान। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये स्कैंडल पॉलिटिसाइज हुआ या नहीं हुआ? Sorry, can I answer to that? Yeah. मेरा ख्याल है कि बहुत कोशिश की गई शहनाज गुल को जोड़ने की याया खान के साथ, और ये एक आई डोंट नो कि एक लॉजिकल कंक्लूजन था लोगों का, बिकॉज पीपल वर सो कन्विंस्ड कि कोई बड़ी कंस्पिरेसी है मुस्तफा जैदी के डेथ के पीछे। और फिर जाहिर सी बात है एक साल बाद तकरीबन एक साल बाद जो है आफ्टर द वॉर एंड आफ्टर ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल जंग के फौरन बाद ही जो है वो अखबारों में चर्चे आने शुरू हो गए थे नूर जहां के बारे में और दूसरी खवातीन के बारे में भी और जनरल रानी के बारे में भी। तो एंड इसमें जो है वो मुस्तफा जैदी के अपने भाई इर्तिजा जैदी ने जो है वो खबर मतलब कि खुद कहा कि जी मेरा ख्याल है कि शहनाज जो है वो या के खवातीन में शामिल थी। हालांकि कोई हमें प्रूफ नहीं मिलता इस चीज़ का, ना वो एक शहर में थे ना वो सोसाइटी में था, ना देयर वाज नो on the ground there are no facts that match up to this, but people needed a villain and they found which was Yahya, and they needed another villain to back up this theory कि शहनाज के पीछे कोई important और influential आदमी था। तो बिल्कुल politicise किया गया, लेकिन इस politicization में मतलब कि सिर्फ याया ही नहीं, मतलब कि उससे पहले भी अपनी इलेक्शन की तकारीर में भी कैंपेनिंग में भी भुट्टो साहब ने जो है वो जरूर शहनाज को मेंशन किया कि जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम शहनाज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे या हम शहनाज को छोड़ेंगे नहीं। ऑब्वियसली एक पॉपुलर कल्चरल मोमेंट को कैपिटलाइज करने के लिए जाहिर सी बात है अखबारों में अगर सिर्फ शहनाज गुल की खबरें हैं तो एनी पॉलिटिशियन who was contesting an election at that time would say something कि when we come to power we will arrest Shahnaz or we will make sure that justice is served। तो बिल्कुल जोड़ने की बहुत कोशिश की गई, but I think ऐसे वक्तों पे it became so much more about the role of women versus the role of men। One other thing that I think is very unusual is जो I think fully शायद हम एक younger generation नहीं इसको experience किया कि for the first time, at least the way it is explained to us, यहाँ पे audience में बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद हमें contradict करें इस बात पे कि लोगों के लिए बहुत shocking था कि for the first time generals sex scandals were coming out into the open। So that moment in itself was so shocking कि it wasn't just about all of the things that had gone wrong in the war and about military campaign, the military campaign, but also about their personal lives। तो obviously सबको conflate करने के लिए शहनाज गुल एक बहुत अच्छा टारगेट थी, और it's like अगर आपको एक तार कहीं से मिल रहा है और आप दूसरे तार को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ। So obviously अगर आपको शहनाज के पीछे भी तक वो कोई पावरफुल हैंड नजर नहीं आया या मिला नहीं है, तो जब ये याया का केस चल रहा था या जब याया की खबरें चल रही थी तो it became very important to join both of them। but हाँ बिल्कुल politicize तो बहुत करने की कोशिश की गई थी, but as Tooba will also tell you, हमें आज तक किसी अखबार में you can never find a politician directly linked to शहनाज गुल। इसके पीछे बहुत वजूहात हैं, इसमें self censorship भी involved हैं, and obviously there was no concrete evidence। लोगों ने करने की बहुत कोशिश की, but at no point does it ever actually seem to be based on facts। But ये I think एक common चीज़ है जब भी होता है, when anytime there is a woman involved in a criminal case, people try to connect that somehow to an important politician, जो भी उस time पे villain है या hero है। तो मैं पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर याद दिलाता चलूँ कि फोरम हमारा सिर्फ मोनोलॉग तो नहीं है, अभी 3 लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बोरिंग सीन नहीं होना चाहिए। आप लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन है वो चैट में क्वेश्चन लिखें या अपना हाथ रेज करें और वो वहाँ पे अपना जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। और जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हैं रूम में वो भी आगे बढ़ के माइक को ऑन करके अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी डॉक्टर निदा। फरीद, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो उस वक्त मौजूद थे और अपने अपने ओपिनियन और अपने अपने
ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं। जी डॉक्टर। मैं ये मालूम करना चाहूँगा क्योंकि आपने जो रिसर्च आप दोनों की है और इस पर बहुत काम किया गया है, तो हम लोग अपनी बेयरिंग लेते हैं डॉन से जनरली। पता नहीं वो खान साहब का जमाना था या नहीं, प्री खान साहब, हाँ, nevertheless, तो how did Dawn treat the subject? Was it different to the others? Dawn's treatment of the case was quite different, but Star's was quite sensational because obviously evening papers are more like nothing better than scandal sheets. But Dawn did have relevant details. It is like Dawn is. तो उसमें इतना मैं नहीं कहूँगी कुछ था जो ज़्यादा disagree a little bit. There was a lot of scandalous stories that Dawn also did in the later stages, not in the initial. Yeah, not in the initial stages, but in the later stages. But there's a reason भरोसा बात बंद हो गया था, including Dawn. तो उसके अंदर ये चीजें जरूर आई थी, लेकिन हमें जो आई थिंक सबसे ज्यादा स्कैंडलस चीजें मिली थी वो उर्दू प्रेस की थी सारी। सही। अभी थोड़ी देर पहले Saba just mentioned influential people, and this influential people thing, you have been repeating this term for a long time in your podcast. Yes. So क्या लगता है आपको influential people? आज भी बहुत सारे लोग जो है, अब बहुत सारे और नाम आ गए, खलाई और कुछ और तरह के words. I don't think these influential people existed. No. No, I don't think they Do existed. they exist now? I mean, they might exist now, but definitely we haven't been able to find any influential person. We have gone through so many things और हमें कहीं कोई identity किसी influential इंसान की नजर नहीं आई, सिर्फ खबरों में नजर आता है influential people came to visit her, influential people are linked with Shahnaz. Fareed, may I? Ghazi Salahuddin साहब यहाँ बैठे हुए हैं. I think we want to hear from you. आप ये ऐसा area है जिसमें आप वो अपनी कुर्सी आगे ले आएं, यहाँ आ जाएं. It would be very nice to hear your views on this. Salahuddin Sahab was covering the whole story. तो बताइए, आप शेयर करें हमारे साथ. बहुत सी बातें हैं. बहुत पहली बात तो ये, पहली बात तो ये कि this is a wonderful kind of a session कि जिसमें जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं. और अगर हम मुस्तफा जैदी के आईने में उस जमाने वो बातें बताइए जो नहीं हो रही नहीं, आपने कहा कि डॉन ने कैसे कवर किया. आई वॉज इन डॉन एट दैट टाइम. और डॉन जो है वो बहुत शरीफाना सा नेक परवीन अखबार था और है अभी तब तक. जी है. वैसे बहुत कम लोगों को ये याद होगा कि उस जमाने में आफ्टरनून डेलीज हुआ करते थे कि जो शहर के बारे में ज्यादा खबरें और उनकी हेडिंग जो है वो अक्रॉस द बैनर हुआ करती थी. हर रोज उन्हें एक बड़ी खबर चाहिए होती थी और वो 3 अखबार थे, लीडर, डेली न्यूज और स्टार. और उन अखबारों का जो इम्पैक्ट था वो एक सोशल सर्किल में डॉन से ज्यादा हुआ करता था. उससे 3 साल पहले मैं लीडर में था, यानी 67 में मैंने लीडर छोड़ के डॉन ज्वाइन किया था. तो लीडर में और डेली न्यूज में और स्टार में सोसाइटी की खबरें छपती थी, कॉकटेल पार्टीज की खबरें छपती थी. खासतौर पे लीडर में सुल्तान अहमद लिखा करते थे रेमलर्स डायरी, जिसमें कल शाम किस डिप्लोमेट के यहाँ दावत थी और कौन कौन आया और के नाम होना उसमें शामिल होते थे. और क्राइम की खबरें छपती थी. तो वो एक और तरह की क्लाइंटेल थी उसकी, और उसमें मुस्तफा जैदी की कवरेज हुई थी. और जो बात शुरू में डॉक्टर तारिक ने कहा शेर जो उनके मशहूर, तो क्योंकि मुस्तफा जैदी मौजू है बुनियादी, तो एक शेर मुस्तफा जैदी का मुझे बहुत पसंद है और वो मैंने उनकी एक नज्म में से निकाला है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही उनकी अपनी जिंदगी से उसका ताल्लुक आप जोड़ सकते हैं. और वो शेर ये है कि तितलियां उड़ती हैं और उनको पकड़ने वाले सही नाकाम. किसने उठाया ये मिसरा? वाह वाह. तितलियां उड़ती हैं और उनको पकड़ने वाले सही नाकाम में अपनों से बिछड़ जाते हैं. तो मुस्तफा जैदी की भी ये कहानी.
सबा ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी कैसे बदली। असल में जो मुस्तफ़ा ज़ैदी की जिंदगी में जो भौचाल आया वो उनका नौकरी से निकाला जाना था, और इसको उन्होंने ऐसा अपने दिल पे लिया कि irrespective of शहनाज गुल he had suicidal thoughts। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि I knew very well a very close friend of his, और वो बताते थे कैसे, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स उस जमाने के होते थे वो आजकल के ब्यूरोक्रेट्स की तरह नहीं होते थे, वो ऑल पावरफुल होते थे। उस जमाने में पावर सेंटर्स ऐसे इतने नहीं थे जितने अब हो गए हैं। अब तो ब्यूरोक्रेसी जरा सी यानी हाँ डी क्लास भी हुई है, और उसमें उस जमाने में सिविल सर्विस का इम्तहान देना और उसमें पास होना जो था ना वो बहुत ही कमाल। तो जब भुट्टो ने निकाला इतने बहुत से लोगों को, तो उसके बाद भुट्टो ने एक और सिस्टम बनाया लेटरल एंट्री का, विच वाज बाईपासिंग द होल सिस्टम। तो सिविल सर्विस तो सब बदल गई। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी का ये मसला था, और बज़ाहिर तो ये लगता है कि हो सकता है सबा और तूबा बताएंगी कि क्या ये म्यूचुअल सुसाइड के इम्कान पे बात हुई थी। हमारे पास यहाँ चैट में भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या सुसाइड थी या मर्डर था। उसके लिए आपको पॉडकास्ट सुननी पड़ेगी, और अगर बुक आएगी तो वो भी खरीदनी एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी, ये जानने के लिए आप पॉडकास्ट सुने और बुक पढ़े। मगर वन ऑफ द रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स इज द डिफरेंट मर्डर थ्योरीज दैट वी केम अप विद। हमारे पास पूरी एक गूगल डॉक्स में फाइल है। द मर्डर सुसाइड इज वेरी पॉपुलर। द और कौन सबा मर्डर सुसाइड murder suicide, there's who murdered who, there is was Yaya involved, was it influential men? Yeah, was it a murder in which Shahnaz was an accessory to murder? Was she an accomplice? Was she not an accomplice? Did she not know what was happening? Was she drugged? Why was she drugged? तो बहुत सारे questions हैं, unfortunately कुछ के जवाब से शहनाज और मुस्तफा ही दे सकते थे, जो अब हम जिंदा नहीं हैं। But Ghazi sir, just to answer one of the points that you said also, the suicidal thing, बहुत उसका जो है वो बाद में the police made a lot out of this कि मुस्तफा ज़ैदी had suicidal thoughts। अब हमारा और हमारी जो understanding है और ये जो basic understanding थी इस केस की कि it must have been suicide is also what the police initially thought, because वो आए मौका वारदात पे और जो है वो उन्होंने देखा कि मतलब कि एक शख्स जो है वो he is deceased, and सब यही इसी तरह कहते थे कि जी वो तो सुसाइडल थॉट्स थे, और कोई उनके शेर में भी सुसाइडल थॉट्स थे, या वो किसी एक दिन पहले भी वो किसी से इस तरह का जिक्र कर चुके थे। बट जो उनकी फैमिली ने कहा है कई दफा, और उनके दोस्त भी ये कहते थे कि मुस्तफा ज़ैदी ये पहली दफा तो नहीं सुसाइड का जिक्र कर चुके, ये अक्सर वो बेशतर ही वो कहते थे। वेरा ज़ैदी ने बहुत एक स्ट्रांगली एक पॉइंट बाद में रेज किया था कि उनकी जो अहलिया थी कि मुस्तफा ज़ैदी अक्सर ही कहते थे कि तुमने ये काम नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, बट इट वाज अ वे फॉर हिम टू मतलब कि कंपेल हिज फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल टू डू समथिंग। पहली बात। दूसरी बात ये कि वो ये सुसाइड की उनकी मतलब कि हिस्ट्री रह चुकी थी। He had attempted to commit suicide not once but several times from the time that he was in Allahabad as a student, including in Lahore, और बाद में quite possibly later on in life as well. अब ये which is why obviously it makes it very difficult to know, okay, was this a successful suicide attempt, or because he had already had this previous history of trying to of allegedly trying to commit suicide, कि if it was murder then it was quite easy to say कि obviously एक इंसान जो इतनी देर से कह रहा है कि वो अपने आप को मारना चाहता है या obviously ये तो अब suicide ही होगा ना। So it makes it quite easy. If you think of it from the perspective of somebody who may have wanted to kill Mustafa, it's very easy then to cover it up and say कि तो suicide होगा, because देखें ना एक इंसान है जिसकी already एक history है, सबको पता है। आप उसके कल परसों वो किसी दोस्त से कह रहा है कि आज तुम्हें शाम गरीबा नहीं लग रहा है ये, etc. So all of these things really kind of contributed to this thought कि ये obviously एक suicide का case है। But you know, obviously उसके लिए एक medical facts भी establish करने होते हैं, और दूसरा ये कि circumstantial evidence just as much as it leans towards suicide also leans in some ways towards something else going wrong. And ये एक obviously 50 years later आप उसको कितना बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है, उस रात क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या बात हुई, हम गैस कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही शख्स की कन्फेशन है या एक ही शख्स की बातें हैं, who obviously has a clear interest in making sure that she comes out of this innocent, right?
तो the suicide thing, I just want to say कि एक perception जो है वो बहुत strong है suicide का, and it's quite possible that that is what happened. You know, he decided he had had enough, etc. But बहुत सारे facts match नहीं करते इस चीज को. Again, किसी की mental health का उस जमाने में उस exact point पे क्या वो उनकी mental condition थी, ये भी understand करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए after 50 years also. Thank you, Saba. Saliha. There are quite a few questions online. Do you want to take them right now? Yeah, sure. If there are any questions. Okay. So did anyone interview Shehbaz? Is there any account from her at all? So Shahnaz has passed away. Yes, so there's no account from interviewer, yeah. I think one of the other questions is that he had a lot of rivals amongst the poetic community. Ji, bilkul, but I mean, you know, it's a little much of a stretch to believe that somebody, a poet or a writer, is organizing a murder of their most popular rival. Saba, maybe we found our influential people after all. I mean, people have hinted towards this. Isme koi shak nahi hai, but I think everyone's villain or everyone's suspicion is different based on कि वो किस ज़माने में मुस्तफ़ा ज़ैदी को जानते थे. मसलन उनके इंतकाल से पहले I interviewed Masood जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे. And लेकिन वो मुस्तफ़ा को एक बहुत different time period पे जानते थे, which was when he had just moved to Pakistan from the kind of early 50s to 60s wala period. And the Mustafa Zaidi he knew closely is very different from the Mustafa Zaidi that somebody knew in 1970. Or somewhat different. So, उनका जो, you know, his theory is, मेरे कहने का मकसद है कि anyone who has interacted with Mustafa at a certain point in time could have come up to a different theory as well. But बिल्कुल I'm sure उनके rivals होंगे, and I'm also sure कि जैसा मुस्तफ़ा खुद ने express किया कि, you know, he felt very strongly कि कोई उनको hound कर रहा है from the current regime because of this corruption case or alleged corruption case against him. But there is no evidence or no clear killer who has ever come forward. Thank you, Saba. We have some comments here now. So Mr. Jafer Bilgrami is here and he was covering that case at that time. जी मैं कुछ इजाजत है मुझे कहने की बात. हाँ, just a few comments. डॉक्टर बिरजा अली अजहर नाम है मेरा. और पहली बात तो ये कि आपका एक दरमियान में आपने फरमाया कि आजकल के डॉक्टर वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बहुत सारे मुख्तलिफ अदब की जो असनाफ हैं उसमें लिख रहे हैं, लोग बना रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं डॉक्टर अपनी तमाम तर डॉक्टरी की मशगूलियात के अलावा. ये क्लैरिफिकेशन दे दूँ मैं आपको. दूसरी बात है कि जो आजकल आज का जो गुफ्तगू हो रही है मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब के ऊपर, तो मैंने मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब का जो तमाम एपिसोड जो भी अखबारात वगैरह दिखाए गए वो सब मेरे दिमाग की सारी पुरानी बत्तियां जल गई, इसलिए कि उस वक्त मैंने बहुत ही कीनली उसको फॉलो किया था और मैं उस एज में था कि जब मैं, बल्कि मैं न्यूज़पेपर का रीडर हूँ बहुत ही अर्ली एज से ना, तो 60s के बाद से जितने भी मतलब है कि अखबार आते हैं उनकी सबकी सुर्खियाँ मुझे अभी तक याद हैं उनकी. तो सारी चीज़ें जो हैं मेरे उसमें. अब दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है जो इस पे बात करनी चाहिए या हो चुकी है काफी. एक तो मुस्तफ़ा ज़ैदी का शहनाज के साथ रिलेशनशिप क्या था, नंबर एक. और दूसरी बात यह कि वेदर इट वाज ए मर्डर और इट वाज ए सुसाइड और समथिंग एल्स. तो जहां तक रिलेशनशिप की बात है तो उसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है. मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब का एक कता में पेश कर देता हूँ जिसका जो उन्वान है वो है शहनाज. और उसमें उन्होंने कहा है कि फनकार खुद न थी मेरे फन की शरीक थी, फनकार खुद न थी मेरे फन की शरीक थी, रूह के सफर में बदन की शरीक थी, उतरा था जिस पे बाबे हया का वरक वरक, उतरा था जिस पे बाबे हया का वरक वरक, बिस्तर की एक एक शिकन की शरीक थी. तो ये उनका जो रिलेशनशिप है ये वाज़ेह हो जाता है इसमें, तो इसमें मज़ीद कहने की जरूरत नहीं है. लेकिन बाकी जहाँ तक सुसाइड का और उसका ताल्लुक है तो वो मुझे अभी तक वो तस्वीरें याद हैं कि जो प्याले जिसमें वो मशरूब था कि जो दोनों उन्होंने पिया था उसकी तस्वीरें उसमें आया करती थी. वो मशरूब कहाँ से आया था, यकीनन कहीं से रखा गया होगा और या तो सुसाइड उसके या फिर मर्डर से. लेकिन आखिर तक शहनाज के ऊपर ये तकरीबन एक किस्म का शक और शुबा आखिर तक ये रहा, कवर्ड रहा ये सारे का सारा केस. लेकिन शुक्र इस बात का है कि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था,
अगर आज जैसा सोशल मीडिया होता तो पता नहीं ये कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। ये बड़ी शुक्र करने का मकाम है। अदरवाइज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अफसोसनाक केस। और अफसोसनाक इसलिए भी कि दरी साहब एक बहुत बड़े शायर थे, ब्यूरोक्रेट के अलावा इज वेरी गुड शायर, और उनको अपनी जात में ये अफसोस था कि उनका मकाम और मर्तबा जो था, मैं अगर सही कह रहा हूँ तो मतलब कुछ लोगों ने लिखा है इस बारे में कि उनको इस बात का अफसोस था कि उनको अपनी जिंदगी में उनकी जो शायराना अजमत थी उसको इस तरीके से नहीं मतलब एक्सेप्ट किया गया जिस पाए के और जिस मर्तबे के वो शायर थे, उससे भी थोड़े मलूल और मगबूम रहते थे। मतलब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जाफर साहब। मैं 1970 में डेली न्यूज में जूनियर अप्रेंटिस रिपोर्टर था। आई along with 4 other journalists broke the story without knowing who is that man who was found mysteriously dead. ये मालूम हुआ कि साहब पुलिस रिपोर्ट से कि एक पुरस्कार बॉडी वहां पाई गई और एक खातून बेहोश उस कमरे में पाई गई, KDS स्कीम नंबर 1 के एक मकान में। पुलिस हेड ऑफिस में रोज जाया करते थे ये क्राइम रिपोर्टर्स जाते थे, वहां से पुलिस वाले स्टोरीज देते थे, खबरें आती थी। हाँ। 4 दिन के बाद गाजी साहब के दोस्त रजा अली आब्दी ने, जो उस वक्त न्यूज एडिटर थे हुर्रियत के, उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी स्टोरी मिस की है, ये तो मुस्तफा जैदी हैं और हम नहीं जानते थे कि मुस्तफा जैदी कौन है। दैट इज हाउ वी केम टू नो। फिर उसमें एक और बात है जिसको लोगों ने अब तक रिपोर्ट नहीं किया। देयर वाज थर्ड पर्सन इन द रूम आल्सो। ये बताएं तूबा और ये क्या? There was a third person also who was found missing from that room. शहनाज तो बेहोश थी and Mustafa Zaidi was dead, but there were traces कि third person was also in the room, जिसको किसी ने टच नहीं किया आज तक। क्या आप दोनों को मिला है ये कोई क्लू? I don't believe that there are any traces of a third person. There are suspicions that a third person was in the room, which is the murder theory. कि obviously क्योंकि दरवाजा जिस तरह से वो घर बना हुआ है और जिस तरह से दरवाजा लॉक था, कि some third person entered. बहुत देर तक तलाश पुलिस ने की for the taxi driver who brought Shahnaz to the house, जिसका आज तक पता नहीं चला, and बहुत देर तक for somebody else who was in the room, बिल्कुल, because there is, again, if you look at the scene of the way these people are found, it is quite possible that some third person enters the room. But जो वाहिद person था जो पुलिस जिसने बयान दिया जो रात को था, वो था चौकीदार वहां पे, and the चौकीदार never saw somebody come in or out of the house the entire night. But the problem with this statement also is कि रात को actually लोग तो आए थे, मुस्तफा जैदी के दोस्त ने आके दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुला नहीं, and जब चौकीदार ने ये कहा कि जी मैंने तो किसी को देखा ही नहीं, तो the friends who said कि हम तो आए थे रात को 3 बजे, तो वो ये कैसे कह सकता है कि ऐसे किसी को भी नहीं देखा, हम भी तो आए थे ना 3 बजे, और हमने आके इससे बात की कि मुस्तफा घर पे है, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं भी घर पे कि नहीं। तो I don't think that the police ever had proof कि जो है कोई तीसरा बंदा वहाँ पे था। बिलग्रामी साहब, if you are able to tell us more, that would be great. But मेरी प्रोसिक्यूटर से भी बात हुई है, जो उस वक्त देखिए प्रोसिक्यूशन टीम से भी बात हुई है जो उस वक्त वहाँ पे जिन्होंने केस ट्राई किया था। The case ended up not being so much about who killed Mustafa, but it became about whether Shahnaz did it. ये एक बहुत बड़ा फर्क है। The police had a suspect in custody. उनको फिर तलाश करने की जरूरत नहीं थी किसी तीसरे बंदे को, वो चाहते थे कि इस पे केस एस्टैब्लिश हो जाए कि इसने किया है, नॉट कि किसने करवाया है या कौन मोटिवेटर था इसके पीछे, but whether Shahnaz could have committed Mustafa's murder. And for Shahnaz's lawyer, it was not to establish some other person who had done it. मतलब ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे थे ना कि मेरे क्लाइंट ने नहीं किया, आप एक्स को पकड़े जाके, या जो तीसरा बंदा है या कोई आया था रात को ये घर में कि नहीं। It's quite possible that somebody came in. बहुत लोगों ने, मुस्तफा के दोस्तों ने हमें बहुत सारे नाम शेयर किए हैं कि एक्स हो सकता था या वाई हो सकता था, but the fact is कि जब when this case went to court, they did not have to look for a third person. They had a suspect in custody और वो शहनाज पे ही केस ट्राई करना चाहते थे। क्राइम सीन को देख के अंदाजा बिल्कुल आप कर सकते हैं कि कोई तीसरा बंदा आया था कि नहीं, but it's also the way that Shahnaz has described this crime scene, it's also just as possible कि nobody ever entered this room.
and that whatever happened between the two of them. Also, the third person theory comes in if you listen to the first season of our podcast where we actually discuss the murder theories themselves. Who could have come and helped Shanaz? Did someone come? How they would have entered and everything. तो उस पे थोड़ा सा हमने टच किया, but हमें कोई concrete evidence नहीं मिली थी of a third person. And for details in this case, I think people have to listen this podcast. इन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत details बताई. So for example, just to further this, for example, एक बहुत common theory कि जी शहनाज ने दरवाजा खोला पीछे से for her husband or for somebody else to come in. But then the police never found anything to connect the husband to the crime scene. उसके कोई traces नहीं है वहाँ पे. They didn't find anything to suspect, कि किसी और ने जो है कोई marks of violence नहीं है मुस्तफा की body पे, other than a previous injury. So it's not that somebody came in and then killed him. So it's I don't know. It's very likely and very possible that it happened, but it's also just as likely कि जो कुछ हुआ वो उन दोनों के बीच में हुआ. Since Also, sorry. Okay. Also, I feel like it's important to point out over here that the police also had its own motive in this case. They did want to show that, look, okay, something bad happened and this is how we solved it. And Shanaz was like their easiest target. They didn't need anyone else. They didn't need anything else. They were like, good, ready-made. एक वो मिल गया था वहाँ पे. ठीक. So, I think if you read the proceedings for the bail application which came for in Deputy Commissioner office, you will get many more details. What was the actual scene of the crime and what happened after that? Thank you, Doctor. जी डॉक्टर. मेरा सवाल ये है कि उस जमाने की पुलिस ऐसी थी जैसे आजकल है. इससे इन्होंने डील किया है अपने पिछले से पिछले एपिसोड के अंदर. नहीं, I mean पुलिस काफी जाहिर सी बात है बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो गए थे इस केस में, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन एक तो सीनियर जज जो थे उस पर सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने सो मोटो नोटिस ले लिया था इस केस पे, जो ऑलरेडी इन इटसेल्फ एक बहुत लीगल लैंडमार्क बन गया था बाद में, क्योंकि देन शहनाज अपील्ड के ये गलत सो मोटो नोटिस लिया गया था उनके केस पे एंड शी वन द अपील, एंड ये जजमेंट को बहुत साइट किया जाता है इन लीगल केसेस. जो है वो पुलिस बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, बहुत वेल नोन थे ऑफिसर्स. जाहिर सी बात है उनका अपना भी आई एम श्योर कोई पर्सनल कनेक्शन कुछ ऑफिसर्स का होगा विद मुस्तफा फ्रॉम द सिविल सर्विस एंड द पुलिस. दे वर नॉट बहुत मतलब कि इतना बड़ा मुल्क नहीं था कि किसी लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे. तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बट इल्जाम वैसे ही थे कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की, बल्कि जिनसे मैं मिली प्रोसिक्यूशन टीम में वो अभी यही कहते हैं कि जी पुलिस ने नहीं सही काम किया. बट अगर आप पुलिस की तरफ से देखें ये केस तो वो तो इट लुक्स लाइक ऑन पेपर दे डिड एवरीथिंग राइट. उन्होंने बयान लिए, उन्होंने सस्पेक्ट को कस्टडी में ले लिया. मुस्तफा की फैमिली से एंड क्वाइट एविडेंटली ये एक बहुत वाज़ेह चीज़ नजर आती है कि दे डिडंट डू अ गुड जॉब ऑन द क्राइम सीन. उस क्राइम सीन में बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मिस की, मसलन हम पॉडकास्ट में भी है, लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों के उन्होंने सैम्पल्स लिए. जब 2 दिन बाद इर्तिज़ा जो मुस्तफा के भाई थे वो गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि तो कॉफ़ी के कप भी पड़े, आपने ये नहीं देखे, तो वो तब वो लेके गए. बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मिस की या उस वक्त जाने दी. अगेन बिकॉज जो इनिशियल सीन पे पुलिस ऑफिसर्स आए थे, मे बी दिस इज नॉट, मैं पुलिस की साइड नहीं लेना चाहती, बट इट्स ऑल्सो वेरी एविडेंट, उनके लिए बहुत क्लियर कट सुसाइड का सीन था. ये उनकी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होगी, बट वो दे वर नॉट लुकिंग ऑन द फर्स्ट डे फॉर क्लूज ऑफ मर्डर. दे वर लुकिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ clues of, I mean, very evidently a man who had killed himself, and this poor housewife of two, a mother of two, who was mysteriously found unconscious, and who they needed to get to the hospital. तो बहुत सारी चीजें शायद ये possible है कि उन्होंने अपने first day ignorance में ही miss की, कि वो ढूंढ ही नहीं रहे थे murder की चीजें. ये तो बहुत कुछ दिन बाद जब pressure उन पे build होना शुरू हुआ कि तो murder का case है, जब judiciary involved होगी, जब अखबारों में खबरें छपनी शुरू हो गई, जब first day की खबर में बहुत clearly जंग में खबर है, जो उस वक्त जाहिर सी बात है जर्नलिस्ट बेहतर बता सकते हैं कि इट वाज रिपोर्टेड कि मुस्तफा ज़ैदी ने खुदकुशी की है. ओनली 2 days later did it become very evident in the papers कि नहीं, ये तो पुलिस अब एक मतलब कि सस्पिशियस तरीके से देख रही है शहनाज को, या अब क्राइम सीन में. तो नहीं, पुलिस वैसी नहीं थी, लेकिन जो है वो इल्ज़ाम उन पे वैसे ही लगे कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की. पर अगेन दे हैड टू वर्क विद. आप उस ज़माने के हिसाब से भी देखें, आई थिंक दे डिड many things correctly, or they did at least some things correctly, and that they still did
they ordered they had an exhumation done. They had a second post-mortem done. They interviewed a lot of people, it seems, in the case. And then they tried to build a murder case against the person that they had in custody. Ye ek alag cheez hai ki they never had enough proof against her. Also, the police investigation team kept changing. So it wasn't just one set or one police station that was investigating the case. It was actually quite a lot, few of them. जी डॉक्टर मासूद. Obviously this is very interesting. हम बाज लोग हैं who are not familiar with it, बाज लोग जो हैं they are familiar with this case, more familiar. So conjecture है, बैठे बैठे मुझे एक ये ख्याल आया है कि इसमें ठीक है political issues हैं और issues हैं, but there is also a bit of voyeurism. So मैं ये सोच रही थी कि ज़ैदी साहब, if he was alive, if he जहाँ भी हैं, if he was to see what happened and what was made of his death or suicide था क्या था etc. बहुत हिसास आदमी थे. उनकी जो शेर मैं familiar नहीं थी, वो जो आप लोगों ने यहाँ पढ़े हैं, तो ये मेरे दिमाग से ये this thought came to me. There is a tremendous degree of voyeurism when we look at things like this conjectures, कि क्या relationship थी, कैसे मरी, किसने मारा, what, etc., etc. So Zaidi Saab, if he was somewhere where he could hear this, it just struck me. I wonder what he would think of what followed his death. This is just a thought that went through my mind. Okay. Then it would be like Rashomon. Saba would be familiar with it. Saba, can I take this? Go ahead, please. So I know this is going to be an unpopular opinion, but I think you would have enjoyed it. Because he, in Kohineda, the preface, like the kind of stuff that he's written, it shows, like it gives you an insight into his personality. He was very open. He'd taken a lot of nude photographs of Shanaz, and he'd actually gotten 3,500 nude pamphlets printed off calling her the Christine Killer of Karachi, which is where the military sex scandal also comes in because of Ayub Khan and Christine Killer. I know it might go over a lot of people's heads, but it's very like natural to me to talk about it because I've done so much research on it with Saba. But he was someone who liked drama. He liked these things happening around him. And I feel like if he was here, if you could see us talk about it, he would be interested. He wouldn't, I don't think he'd be offended, but I think he would have enjoyed it because this is the kind of stuff he was into. Like in Kohineda, he's written about how he was obsessed with porn for a year and how he was, into nude photography and everything. So I think, like Saba, I mean, correct me if you think I'm wrong, but also Saba and I have our own relationship with Mustafa I would Zaidi like at this to point. add a dimension of question into this, ताकि उसी के context में आप इसी के ऊपर मज़ीद expand कर लें कि हमें नज़र आता है कि इस केस को जिस तरह से लेके आगे बढ़ा गया, इसके अंदर आपने जिक्र किया है adultery के कोई charges नहीं लगाए गए, ठीक है. फिर जिस तरीके से इस केस को जर्नलिस्ट ने लिखा और इसके ऊपर तबसरे लिखे, तो क्या लगता है आपको कि एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी में मोरालिटी जो है वो क्लासेस के अंदर डिवाइड है, हर क्लास की एक अलग किस्म की बिल्कुल मोरालिटी है और हर बंदा अखलाकियात को बिल्कुल एक अलग तरीके से देख रहा है? बिल्कुल, अडल्ट्री का चार्ज इसके ऊपर इसलिए लगा था क्योंकि मर्डर केस था. And Saba, do you want to answer the second half of the question? बिल्कुल नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है. And also the question of voyeurism is absolutely true, but that voyeurism very quickly changed even at that time from the facts of Mustafa Zaidi's life to then Shanaz. Yeah. The voyeurism jo hai, wo ek, it became about both of them, about Mustafa, his life, his we're all adults here, his sexual proclivities. It became very much about his life, but also about hers. तो उस वक्त भी एक voyeuristic interest था उस केस में, और आज भी एक voyeuristic interest है and in the way we're doing it. And obviously, when किसी चीज पे आज तक देखें 50 साल हो गए मुस्तफा ज़ैदी के डेथ को, आज भी उनकी बरसी, देखिए अब भी उनकी बरसी आ रही है, हर साल वही फैक्ट्स रिपीट किए जाते हैं of his death in a very simplified manner. And
I think more than the question of voyeurism is what is somebody's life reduced to. Obviously, one could say जो मुस्तफा ज़ैदी की शायरी के fans हैं वो कहेंगे कि it's a disservice कि उनकी ज़िंदगी को एक scandal की तरह से पेश किया गया है, whereas he was an actually gifted poet and a talented bureaucrat. But इसका flip side ये है कि in reality he was much more than just a talented poet in a civil. As Tooba has mentioned, he is also somebody who did engage in behavior जिसको आज we would consider a sexual crime. उस जमाने में ये perception नहीं था, but आज हम उसको बिल्कुल ये कहेंगे. अपनी किसी की भी तस्वीर को जो है उसके pamphlet बनवा के शहर में छुपाने का intent रखना is a crime. And so he would be seen very differently now. बिल्कुल जो morality का question है, I think it is मेरा जहाँ तक at least मेरी understanding है from what people have said to us is, again, जैसे मैंने mention किया कि the fact that they were caught it made it a bit immoral. करते अपने घर में करते, दरवाजे बंद रखते तो ठीक था, बाहर दुनिया में बताने की क्या जरूरत थी. You know, एक वो भी है. There is a bit of a classist element to this as well. जैसे तूबा ने mention किया कि कुछ लोगों के लिए तो मुस्तफा रजिस्ट्री नहीं करते थे कि भाई ये कौन है, तो कि होगा शनाज का किसी के साथ अफेयर हमें क्या, बट ये मुस्तफा ज़ैदी कौन है, मतलब कि वो उनकी जिंदगी में वो रजिस्ट्री नहीं करते थे. Morality, that's the thing also which is really interesting, is that it became much more about her having an affair with a married man and her being married versus her being potentially capable of committing murder. जहाँ तक मेरा at least experience रहा है, even Mustafa's closest friends didn't seem to be as didn't seem to believe that she could have single-handedly done it, versus the fact that so you know the morality question is it morality about sex, or is it morality about the fact that somebody could have killed their best friend or a poet? तो जितनी भी morality का question had really got distilled down to why were these two people found alone in a room together. अगर आप सोचें for example a situation को कि Mustafa Zaidi is not found dead, but let's say कि यही मतलब कि scenario होती कि रात को मुस्तफा ज़ैदी फोन नहीं उठा, मतलब कि what happens for people who are not familiar in the case is कि मुस्तफा ज़ैदी जो है वो अपना फोन नहीं उठाते घर का, अपने घर का, and वो दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं, and चौकीदार भी कहते हैं कि नहीं वो तो घर पे हैं, तो उनके दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं and they break open the door because they look in and they see Mustafa lying on the bed and they suspect something is happening. Imagine a situation in which they break open the door and Mustafa is fine. And you know there is no murder that has been committed, but वही morality का question फिर सामने आ जाता ना कि so the actual fact is that the reason people are shocked by this is that they were found. It's not that somebody may have committed murder. It's not that somebody may have committed suicide. I think our understanding of उस वक्त की भी understanding of morality really became about these two people having an affair, and especially this woman having an affair, not even Mustafa, because वो तो शायद थे acceptable था उनके लिए. To have an affair. I mean, that's also something a lot of people said to us, that it was his like creative leeway, like, you know, because he is a poet and he was a genius, like, you know, he could do these things, like it was acceptable. But the problem then became for Shahnaz. Like, how is this woman, a mother of two, having this affair? Yeah, both of them were married, both of them had children. लेकिन जिस तरह report किया गया कि दोनों ही चीट कर रहे हैं अपने हस्बैंड्स और वाइफ को, लेकिन उसके अंदर जिस पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है तो इसमें जेंडर का भी एक एलिमेंट आ जाता है. और जिस तरह उसको जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह पुलिस वाले उसको हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह कोर्ट में उसको हैंडल किया जा रहा है, और क्या इसमें जेंडर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है इस पूरे केस में? इसके बाद मैं एक क्वेश्चन यहाँ से लेता हूँ, सॉरी ये इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने ऐड कर दिया. जेंडर के लिहाज से आई थिंक अगर आप वो खोलें जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी ना, इफ यू कैन जस्ट सी दैट, जो हेडलाइंस थी, आई थिंक उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जेंडर को उसमें क्या था. बिकॉज़ द काइंड ऑफ हेडलाइंस दैट दे यूज फॉर शहनाज, फॉर एग्जांपल हमने अपने जो अपने स्लाइड शो में दिखाया था उसके अंदर एक तस्वीर थी हमारे इंस्टाग्राम पे, उसका नाम है द मेनी फेसेस ऑफ शहनाज. तो शहनाज को जितना ऑब्सेसिवली लोग कवर कर रहे थे, जैसे मशरक का एक फोटोग्राफर था वो उनकी चादर के अंदर घुस गया, यू नो. फिर एक दफा पुलिस वालों को प्रिटेंड करना पड़ा कि वो चादर लेके घूम रहे हैं, प्रिटेंडिंग दैट दे वर शहनाज, जिससे उनकी फोटो इस तरह नहीं होगी. तो आई थिंक उसको जिस तरह सेक्सुअलाइज किया गया, उसको उठाया गया, लाइक यू नो एवरी सिंगल पर्सन वी हैव स्पोकन टू अबाउट दिस, they have gone on and on about Shahnaz's beauty. Like उससे ज्यादा खूबसूरत कोई औरत किसी ने देखी ही नहीं, कि जब वो कोर्ट जाती थी लोग अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़कर आते थे कि बस एक ग्लिम्स मिल जाए हमें शहनाज की. So
Like, I mean, this woman was essentially just reduced to her. I think it'll be either headlines. Oh, sorry. So gender का जो issue है फरीद साहब, ये जो यहाँ बात हो रही है, ये तो हजारों साल पुरानी चीज है कि इसमें जब morality की बात आती है, माइक शाजू कि जो actually शादी is waiting for. So ये तो बहुत लंबी बहस है कि जो यहाँ जिस तरह ये ट्रीट हुए, हम सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स में बैठे हुए, तो ये चीज जो है ये कोई नई नहीं है, ये डिफरेंट चीजें आप अभी सोशल मीडिया में भी देख लें कि when there is इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है, not that somebody is murdered but between a male and a female, तो वही बात हुई. To Tooba, you said that at that juncture of time, things changed for Pakistan. But when we are discussing all this, we still know that अभी भी जो है सो मोटो एक्शंस लिए जाते हैं, अभी भी पुलिस is doing the same things. And when we come to Noor Muqaddam case or Ayaz Mir's daughter-in-law murder, तो are we interested in elite stories और या कि हमारी morality उनके लिए है? हम अभी भी as print media से निकल के we have come to social media and electronic media, but we are still more interested in stories of elite and not for the common people. Oh, I think we're 100% still interested in the stories of the elite. I've worked on the Karachi desk, I've worked on the national desk at Dawn, and I do think that if the case has a big name, it will get more coverage. It will be more than a single column. It will be more than a brief news. It will be something that's, वरना आप देखें अगर आप ट्रिब्यून का एक जमाने में क्राइम पेज होता था जिसपे पूरे शहर का राउंड अप जाता था, उस पे मेरे ख्याल से क्या 50-60 वर्ड्स की ब्रीफ जाती थी. बट लुक एट समथिंग लाइक द नूर मुकद्दम केस दैट हैपेंड, राइट? I think Vice did excellent coverage of the case because of the headline that went. It was, I think it was something like "Rich man kills woman," and you know that for me is a change of narrative. But if you look at how it was covered locally, like yes, everyone felt bad, everyone sympathized with Noor, but again, the question was, okay, which family is he from? How much access does he have? What kind of how is the situation in jail? Like, you know, when his mom was allowed to go, like वो कहते थे कि उसको वहां पे आके डॉक्टर्स किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, खाना उसको ये नहीं खाना, उसके जेल में नखरे उठाए जा रहे हैं. I feel like ये चीजें बहुत हैं, like people want to know because they don't have access to that, or even if they do, they can't speak about it. So I think that's something that hasn't changed. Sorry, I want to add कि ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में यूनिक नहीं है. आप so, you know, elite के बारे में या somebody from the 1%, if they're involved in any kind of crime या कोई legal case है, तो generally लोगों का interest है. Obviously क्योंकि एक power dynamic ही different है. दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो जाहिर सी बात है elite का power के साथ relationship है, यही लोग हमें जो है मतलब मैं कह रही थी कि जैसे elite का जो power के साथ relationship है, the reason also people are interested or the people are looking at these things is कि अक्सर यही मतलब कि elite / politicians का जो nexus है, यही हमें भाषण दे रहा होता है on morality, right? तो for example, what I mean, Ayaz Mir तो एक known है इस sphere में of people who've made incredibly horrific statements about women, including when he was himself accused of rape. तो जाहिर सी बात है एक general एक interest आज से नहीं है, वैसे भी पाकिस्तान में है, क्योंकि elite की lives जो हैं वो बहुत देर तक closed थी. But अब I think this is not unusual. ये हर मुल्क में है, जहाँ पे भी अमीर लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी केस में, बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं और हमारी इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है. I think तुबा आपको याद होगा कि we interviewed somebody who said कि ये also this is not uncommon. उस वक्त भी अखबारों में हमेशा खबरें होती थी कि परवीन एक्स मोहल्ले की परवीन एक्स के साथ भाग गई. You know, and this was very much very commonly stories, and this was not about somebody like Mustafa or Shahnaz or जिनकी society की तस्वीरें थी. So you know, this was a remarked change from that. ये परवीन की कहानी बहुत common थी अखबारों में कि एक्स उसके साथ भाग गई, एक्स का you know ने अपने husband को छोड़ दिया, etc. So
obviously we are all interested, हम सब एक जैसे उन्होंने कहा कि हम सब lawyers हैं, we are all interested in finding out the lives of our neighbors and the lives of the rich, and especially अगर वो हमें वो election के लिए खड़े हो जाते हैं या वो हमें TV पे जो है रोज भाषण दे रहे हैं morality का या ethics का, तो obviously we would like to know when things happen in their house that are clearly against morality and ethics, right? But again, morality का concept जो है has changed very much in Pakistan. इसमें एक social और cultural बहुत बड़ा impact आया है. जो आज लोगों को चीजें immoral लगती हैं वो 50 साल पहले नहीं थी. सबसे बड़ा I think impactful चीज ये है मेरे तूबा के लिए कि 50 साल पहले लोगों के जहनों में corruption का perception बहुत different था. It was considered blasphemous to be considered to be charged with corruption. मतलब कि अगर आप पे corruption का इल्जाम था तो आप मतलब कि किसी polite society में welcome नहीं थे. You know, it was a stain that you could not remove from yourselves. बहुत बड़ी बात थी to be accused of corruption. और अब जो है वो हमारा relationship to corruption is completely changed because everyone is doing it. So it is not as big of a sin जिस ज़माने में उस ज़माने में था. So obviously morality also changes with time, and I'm sure कि even the fact that somebody was having an affair, again, it's not, maybe it wasn't such a big deal for the middle class as much as it is put, jo ab hai, because the idea of somebody having an affair outside of their marriage has changed a lot in the last 50 years. Excuse me, can I? Sure. मेरा नाम डॉक्टर टीपू सुल्तान है और मैं कुछ एक कमेंट है और एक प्रोटेस्ट है. Comment ये है कि isn't it enough is enough at this moment कि what right you people and I have got a right to go into so much detail of morality and dismorality, especially sitting in an ethical department. फरद मौजम, I'm addressing you कि आप ethics पढ़ाती हैं, सबको पढ़ाती हैं, इतनी अच्छी बातें करती हैं और यहाँ मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ कि इतने बड़े शायर के लिए और अच्छी बातें नहीं रह गई थी आपको कि यू आर गोइंग टू मैक्रो डिटेल ऑफ ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ. आई थिंक इट इज नॉट अलाउड. और इतने मजे ले लेकर के लोग सुना रहे हैं, वो भी अलग मेरे प्रोटेस्ट की बात है. और उसके बाद इतनी मैक्रो डिटेल जाने की क्या जरूरत है आपको? यस, इट हैपेंड. यस, हमारे यहाँ कोई खास बात नहीं है, ऐसा होता रहता है. ठीक है, तो मैरिड कपल थे, ये था वो था. तो ऐसे तो 70,000 किस्से हैं. लेकिन अगर ये शख्स शायर था और ये शख्स बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट था, तो why can't we discuss his man as a good powerful bureaucrat, and why can't we discuss his शायरी? यही एक टॉपिक रह गया आपको साहब के इतनी देर से आप लगे हुए हैं उसमें. थैंक यू. I mean, I think my answer to this is कि आप बिल्कुल आपका protest जायज है, but I think we should study a history in its full sphere. I don't think we have ever been served rightly by hiding that something did not happen. And obviously, this forum ka the mood is different. Aapko lag raha hoga कि we're enjoying this, but it's I think this the kind of stuff that we have read and seen has not been enjoyable in many ways. And yes, it is part of it is the fact that he is a complicated person. Yes, he was a talented poet and he was a gifted bureaucrat, but he is also somebody who died a public death. And for us, I think it is also an opportunity to revise some of the facts that are repeated every year without correction and without any backing. This idea that, you know, she was the person involved in this was like X or Mustafa was like Y is also, I think, a disservice to them and their legacy. So I think we owe it to ourselves and to other people to actually have a better understanding of what happened in Pakistan at that time and how these individuals changed that. Bilkul aapka protest jaiz hai. I would never say that you're not allowed to say this, but certainly a person whose life and death is already public. And एक अलग चीज है कि वो चलें भूल गए लोग. हर साल repeat होता है मुस्तफा ज़ैदी का किस्सा. So I think it's better to actually have a more understanding of the facts as opposed to saying कि नहीं वो बहुत अच्छे शायर थे और बहुत अच्छे bureaucrat थे. Yes, that's true, but he was also many more things than that. And it also doesn't help anyone if we continue to insist that he did X thing or like he committed suicide or he may have died. I mean, he may have been murdered. I think we should come to an answer of whether he did it or not, or whether he was murdered or not. And hopefully Tooba and I can help to address some of these conceptions. And obviously हमारे इस प्रोग्राम का ये मकसद नहीं है कि we go into details and find out कि असल में हुआ क्या था.
all we are trying to do is studying Pakistani history and trying to know about the society कि पाकिस्तान की society में politically, economically लोगों के आपस के relationships या society में किस तरह से morality को देखा जाता था, आज कैसे देखा जाता है, journalism कैसे different है, police और legal procedure में क्या evolution हुआ है. So बहुत अच्छा program रहा. Thank you Tooba और Saba जी. डॉक्टर उस जमाने में ये हो गया. सो जो एक पॉइंट रेस किया था कि उस जमाने के जो ब्यूरोक्रेट थे वो जरा डिफरेंट किस्म के थे. दे टुक ये जो इल्जामात होते थे ये पर्सनली लेते थे. सो जो 303 का जो जमाना था ना, मेरे फादर उस जमाने में, मेरे वालिद ब्यूरोक्रेट थे और मेरी वालदा शायर थी. तो ये जो इंसिडेंट था ये उस शख्सियत का जो कि एक बहुत बड़े शायर थे और एक बाइज्जत ब्यूरोक्रेट थे, ये इंसिडेंट उनकी शख्सियत में शामिल हो गया था. यू कुड नॉट डिसेक्ट वन फ्रॉम द अदर. सो जब हम उनकी शायरी सुन रहे हैं, वो बहुत से अशार हैं जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि उनके अशार हैं, जो भी आपने देखा है उसके अंदर भी और सुनने में भी. हाउएवर दे आर कनेक्टेड वेरी मच टू द पर्सन एंड द पर्सन इज कनेक्टेड वेरी मच टू हिज डेथ. सो इसलिए उनको अलग नहीं कर सकते. और जो 303 का जो असर था वो उसको 303 कहा करते थे उस जमाने में. वो इस कदर गहरा असर था शरीफ ब्यूरोक्रेट के ऊपर कि वो उसने पूरे खानदानों को हिला दिया. मेरे वालिद की वसीयत ये थी कि तुम गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाओगे, इसलिए मुझको डॉक्टर बना दिया. ये अलग बात है, मैं गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहा हूँ, वो अदीब साहब का इदारा है. आखिर में मैं एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा तारिक साहब से, अगर आपके पास कोई और चीज़ है सुनाने के लिए तो वो सुनाएं और फिर हम इसके इख्तिताम की तरफ से. बहुत शुक्रिया. ये जो नज़्म है ज़दी साहब की, मुस्तफ़ा ज़ादी साहब की, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नज़्म शनाज अला रुख के वकील ने उस वक्त जब उनकी ज़मानत का चल रहा था सिलसिला, तो उन्होंने जज से रिक्वेस्ट करी कि मुझे आपसे किराए मिलना है. जज उनको चैम्बर में बुला लिया. वो चैम्बर में उनके पास गए और उन्होंने उनको एक पेपर दिया, हैंड रिटन पेपर था, और उनसे कहा कि ये आप पढ़ लीजिए. जज साहब ने पढ़ लिया और जज साहब ने पढ़ के वापस कर दिया. और जब तशरीफ लाए अपनी कुर्सी पर बैठे तो इस नज़म की बुनियाद पर शनाज अला रुख या शनाज गुल की जमानत हुई. क्यों हुई ये आपको इसमें सुन के मालूम चल जाएगा. आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल राख हो जाएं, कोई और तकाजा न करे. आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल राख हो जाएं, कोई और तकाजा न करें. शाके वादा न सिले, ज़ख्मे तमन्ना न खिले. सांस हमवार रहे, शमा की लौ तक न हिले. बातें बस इतनी कि लम्हे आकर उन्हें गिन जाएं. आंख उठाए कोई उम्मीद तो आंखें छिन जाएं. उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं. उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं, जिससे एक और मुलाकात की सूरत निकले. अब ना ही जानो जनू का ना शिकायत का वक्त, अब ना ही जानो जनू का ना हिकायत का वक्त, अब ना तजदीद वफा का ना शिकायत का वक्त. लुट गई शरे हवादिस में मताए अल्फाज. अब जो कहना है तो कैसे कोई नौहा कहिए. आज तक तुमसे रगे जां के कई रिश्ते थे. आज तक तुमसे रगे जां के कई रिश्ते थे. कल से जो होगा उसे कौन सा रिश्ता कहिए. और जमानत यूं हुई. फिर न दहकेंगे कभी आरिज़ो रुखसार. मिलो, मातमी है दमे रुखसत दरो दीवार. मिलो, फिर ना
हम होंगे ना इकरार ना इनकार, मिलो आखिरी बार मिलो। वाह वाह। आखिरी बार मिलो। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, और बहुत शुक्रिया सबा साहिबा, और बहुत शुक्रिया तूबा साहिब आपका, और सारे सामीन का, सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया।